हेलो हेलो, आईपीएल इज राउंड द कॉर्नर पर मेरा बच्चा लोग पढ़ने वाला है. वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल. माय नेम इज सागर पंड्या एंड टुडे मोस्ट अवेटेड इतना कमेंट सेक्शन में हिस्ट्री. लेट्स स्टार्ट विद हिस्ट्री, राइट? Alright, now starting with the fifth question, that is write short notes on any three will be asked for 6 marks. So usme there are 15 questions which are expected. First question that can be expected is European Crusaders, Kartaz, Dr. Courtness. So write short note on. These are first 5 questions. I'll give you an example. जैसे European Crusaders वाला एक आंसर, Kartaz वाला एक आंसर, Dr. Courtness वाला आंसर, Metallurgy in Europe वाला आंसर, and also Nature of Colonialism. इसके अलावा also there are other 5 answers which are प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, League of Nations, American War of Independence, Non-Aligned Movement, and the fifth one that is Speed Post. Speed Post या तो फिर Polio Eradication. These are other 5 group of questions which are expected. And write short notes का the last 5 expected are Satyashodhak Samaj, ANZUS Treaty, Kamagata Maru incidents, Bandung Conference, and BRICS or GATT. Write short note on BRICS or GATT. So these are 15 questions. I'll just have a quick recap of 15 questions of short note. सबसे पहला यूरोपियन क्रूसेडर्स, सेकंड करताज, थर्ड डॉक्टर कोर्टनेस, फोर्थ मेटलर्जी इन यूरोप, फिफ्थ वन नेचर ऑफ कोलोनियलिज्म. उसके बाद द अदर 5 आर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, लीग ऑफ नेशंस, इसके अलावा अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, नॉन अलाइंड मूवमेंट, एंड ऑल्सो स्पीड पोस्ट और पोलियो इरेडिकेशन. The last 5 are Satyashodhak Samaj, ANZUS Treaty, Kamagata Maru incidents, Bandung Conference, BRICS, and GATT. Now moving forward with the next question, that is question number 6. Explain with reasons. Any 3 will be asked for 9 marks, that is 3 marks each. बच्चा एक चीज याद रखना, whenever we are writing short notes में बहुत beautifully 4 या 5 points में आंसर लिख सकते हैं. There are certain answers which can be written down in more than 5 points, तो उसका 6 points लिखना more than enough है, उससे ज़्यादा लिखना नहीं है. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है या फिर वर्ल्ड ट्रेड GATT है, ब्रिक्स है. These are the questions which are expected and we are expecting the students to write down in a proper manner. There are certain questions which are most expected. जैसे शॉर्ट नोट में मैंने ये 15 क्वेश्चन तो दिए, बट देर आर सर्टन क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं, जैसे कामागाता मारू है, अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है, डॉक्टर कोर्टनेस है, एंड मेटलर्जी इन यूरोप है. दीज आर द क्वेश्चंस विच आर मोस्टली आस्क्ड इन द प्रीलिम पेपर्स ऑफ डिफरेंट स्कूल्स. इसके अलावा देर आर सर्टन क्वेश्चंस, जैसे फॉर एग्जाम्पल द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज एक्सप्लेन विद रीजंस. This question will be any 3 and this will be for 9 marks. First question that is expected is European Renaissance, which is supposed to have reached its zenith in 15th to 16th century. That is the first question. Second question, Indian rulers have to obtain Kartaz. Kartaz वाला question बच्चा remember short note में भी पूछा जा सकता है and give reasons में भी पूछा जा सकता है. The third question is Industrial Revolution gave momentum to colonialism. This is the third important question which can be asked. उसके बाद British government in India decided to return home. Fifth one is ultimately the princely state of Hyderabad was merged. So these are the 5 first important questions. इसके अलावा other 5 are CENTO became non-operational. ब्रिक्स वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 2006. अगेन ब्रिक्स वाला क्वेश्चन भी शॉर्ट नोट के लिए पूछा जा सकता है, तो ये वाला आंसर बराबर से करके जाना है. द थर्ड ऑफ द सेकेंड ग्रुप, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन फर्स्ट बिगैन इन इंग्लैंड एंड इंडियन रूलर्स फाउंड इट डिफिकल्ट टू फाइट बैक अगेंस्ट द पोर्चुगीज. एंड द लास्ट वन, द फिफ्थ वन, पुडुचेरी वॉज डिक्लेयर्ड एज यूनियन टेरिटरी. अभी ये फर्स्ट 10 क्वेश्चंस है. इसके अलावा देर आर अदर 3 क्वेश्चंस विच आर रेयरली आस्क्ड बट पूछा जा सकता है. फर्स्ट वन इज सार्क हैज अचीव्ड सक्सेस इन सम फील्ड. सेकेंड वन वॉज 3 wars fought between Britain and France. And the third one, that is Treaty of Versailles had the seeds of World War II. So again, explain with reasons या give reason वाला जो क्वेश्चन रहेगा उसमें any 3 पूछा जाएगा for 9 marks, 3 marks each.
अगेन मैं एक बार रिपीट करता हूँ ये 13 क्वेश्चंस. First question, European Renaissance is supposed to have reached its zenith in say 15th to 16th century. Second one, Indian rulers had to obtain kartas. Third one, Industrial Revolution gave momentum to colonization or colonialism. Fourth one, British government in India decided to return home. And the fifth one, ultimately princely state of Hyderabad was merged. ये 5 क्वेश्चन के अलावा other 5 questions were BRICS was established in 2006. CENTO became non-operational. Eighth one was Indian rulers found it difficult to fight back against the Portuguese. Ninth one, Industrial Revolution first began in Europe. Industrial Revolution first began in England. Puducherry was declared as Union Territory. These are the 10 questions. इसके अलावा other 3 were SAARC was had achieved success in some fields. 3 wars were fought between Britain and France, and Treaty of Versailles had its seeds in World War II. अभी इसके अलावा there are certain questions which are really very important, and ये जो सबसे favorite रहता है examiner का for cutting marks. State your opinion. इसमें मैं 10 questions देने वाला हूँ तुम लोगों को, बहुत ब्यूटीफुली आराम से लिखना है. फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें मैंने 5-5 के ग्रुप में डिवाइड किया है. फर्स्ट 5 का ग्रुप रहेगा इंडिया हैज ऑलवेज अपोज्ड कोलोनियलिज्म. सेकेंड वन, कोल्ड वॉर बिगैन बिटवीन अमेरिका एंड सोवियत रशिया. थर्ड वन, इंडिया इज अ लीडिंग कंट्री इन स्पेस रिसर्च. फोर्थ वन, ऑल ऑफ अस हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टेकिंग केयर ऑफ आवर हेरिटेज प्लेसेस. एंड फिफ्थ वन, छत्रपति शिवाजी महाराज बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग नेवल फोर्स. These are the first 5 questions जो सबसे ज़्यादा पूछा गया है एग्जाम्स में. बट इसके अलावा there are other 5 questions which are asked, like economy based on surplus production supported economic nationalism and also imperialism. This is one question जो बहुत सारे कॉलेजेस में पूछा गया है. इसके अलावा joint military practice sessions are beneficial for both participant countries, and Portuguese rule in Goa remained untouched till 1961. ये 2 क्वेश्चंस कुछ कॉलेजेस में फेवरेट पूछा गया है एग्जामिनर से. यूरोपियन नेशंस एस्टैब्लिश्ड इन कॉलोनीज इन अमेरिका, रविंद्रनाथ टैगोर गेव अप हिज टाइटल सर. ये 2 अलग क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं एग्जाम में. दीज आर माय फेवरेट 10 क्वेश्चंस. स्टेट योर ओपिनियन के लिए. फर्स्ट, लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट वन, इंडिया हैज ऑलवेज अपोज्ड कोलोनियलिज्म. Second one, India is a leading country in space research. Third one, economy based on surplus production supported economic nationalism and also imperialism. Fourth one, joint military practice sessions are beneficial for both the countries. Fifth one, Portuguese rule in Goa remained untouched till 1961. Sixth one, European nations established colonies in America. Seventh one, Rabindranath Tagore gave up his title Sir. Eighth one, Chhatrapati Shivaji Maharaj built a strong naval force. Ninth one, all of us have responsibility of taking care of our heritage place. And 10th one, Cold War began between America and Soviet Russia. Now this state your opinion question again will be any 3 for 9 marks. It will be easy to answer. Along with that, now coming to the next part, that is question number 8. Answer in detail. अभी ये वो क्वेश्चन है जो 5 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, एनी 2 फॉर 10 मार्क्स. सो इसमें मेरे फेवरेट 10 क्वेश्चंस रहेंगे. सबसे पहला, कॉजेज ऑफ वर्ल्ड वॉर 2, जो मेरा फेवरेट है, पर्सनल फेवरेट है पूछने के लिए इन एग्जाम. सेकेंड, कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ रामास्वामी नायकर एंड कॉजेज एंड इफेक्ट्स ऑफ यूरोपियन क्रूसेडर्स. ये वो क्वेश्चंस है जो एग्जामिनर पूछते हैं, एंड मोस्ट टेंटेटिवली इसके अलावा मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट वाला क्वेश्चन है जो पूछा जा सकता है. एंड एक और पूछा गया है जो बहुत रेयर इंस्टेंसेस में पूछा गया है, दैट इज कॉज एंड इफेक्ट ऑफ राइज ऑफ कोलोनियलिज्म. अभी ये ना मैं थोड़ा शॉक था इसके लिए, बट ऑब्वियसली इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये फर्स्ट 5 क्वेश्चंस थे. तो फर्स्ट वन, contribution of Ramaswamy Nayakar. Second one, causes of World War II. Third one, causes and effects of European Crusaders. Fourth one, short note on moderates and extremists. Fifth one, causes and effects of rise of colonialism. इसके अलावा also the other 5 are Chhatrapati Shivaji Maharaj's resolute policy of safeguarding Maratha sovereignty. This one question. Second one, sports policy of government of India. This is a very rare question, but अगर पूछा गया ना तो बच्चा रेडी रहना इसके लिए, बिकॉज ये पूछा जा सकता है.
थर्ड वन, प्रोग्राम्स लॉन्च्ड फॉर वेज अर्निंग. फोर्थ वन, इम्पैक्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर 2 और वर्ल्ड वॉर 1 इन इंडिया. दोनों अलग अलग क्वेश्चन हैं, दोनों पूछे जा सकते हैं. इम्पैक्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर 1 ऑन इंडिया और वर्ल्ड वॉर 2 ऑन इंडिया. एंड द लास्ट वन, दैट इज डीकोलोनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट. अभी ये 10 क्वेश्चंस है. लेट्स हैव अ क्विक रिकैप, एक ब्रीफ आउटलुक देते हैं किस तरह से हमने स्टार्ट किया था. तो फर्स्ट क्वेश्चन, कंट्रीब्यूशन ऑफ रामास्वामी नायकर. सेकंड वन, कॉजेस ऑफ वर्ल्ड वॉर 2. थर्ड वन, कॉजेस एंड इफेक्ट्स ऑफ यूरोपियन क्रूसेडर्स. फोर्थ वन, नोट ऑन मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट. फिफ्थ वन, कॉजेस एंड इफेक्ट्स ऑफ राइज ऑफ कोलोनियलिज्म. इसके अलावा छत्रपति शिवाजी महाराज रेजोल्यूट पॉलिसी ऑफ सेफगार्डिंग मराठा सोवरेंटी, स्पोर्ट्स पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, प्रोग्राम्स लॉन्च्ड फॉर वेज अर्निंग, impact of World War 1 or World War 2 on India and decolonization of African continent. Now इसके अलावा also we can say the other important questions जो हमारे favorite questions है, that is write detailed answer with the following points. अभी ये जो आंसर है वो 5 मार्क्स ईच रहेगा, any 3 for 15 मार्क्स. इसमें ना सबसे ज्यादा टेंशन आता है और यही सबसे इजी क्वेश्चन रहेगा बच्चा लोग. वाई? बिकॉज इसमें पार्ट्स रहेगा. सो लेट अस सी सम क्वेश्चंस विच आर रियली इंपॉर्टेंट बाय मी, जो मुझे लगता है. स्टार्टिंग विद द फर्स्ट पार्ट, द फर्स्ट क्वेश्चन विच इज इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू मी, रीऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस फॉर स्टेट्स लाइक उत्तराखंड, झारखंड एंड जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख. दिस विल बी द फर्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है. सेकेंड, डिफरेंट पॉलिसीज, प्राइमरी एजुकेशन, मिड डे मील एंड सर्व शिक्षण अभियान. मतलब जो पॉलिसीज का एक्सप्लेनेशन था, लाइक प्राइमरी एजुकेशन, मिड डे मील और सर्व शिक्षण अभियान, ये वाला क्वेश्चन पूछा जा सकता है. एंड द थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट इज RTI. RTI में background of the act and beginning of the movement will be the first part. Definition of information will be the second part, and third one is the rights of citizens under this act. ये 3 क्वेश्चन है जो ऑब्वियसली पूछा जाएगा, पूछा जा सकता है, पूछा जाएगा नहीं. उसके अलावा ऑल्सो एक्सप्लेन द कॉज ऑफ राइज ऑफ कोलोनियलिज्म. उसमें इंडस्ट्रियल कॉन्सिक्वेंस, रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल एंड फीलिंग ऑफ रेशियल सुपीरियोरिटी. दिस इज द फोर्थ क्वेश्चन जो एक्सपेक्टेड है, जो मैं बोल सकता हूँ मेरा फेवरेट है. इसके अलावा एक क्वेश्चन है जो बहुत तुम्हारा फेवरेट है, दैट इज ज्योग्राफिकल डिस्कवरीज मेड बाय डिफरेंट नेविगेटर्स लाइक मार्को पोलो, फर्डिनेंड मैगेलन, क्रिस्टोफर कोलंबस. इवेंट्स ऑफ अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस विल बी द सिक्स्थ क्वेश्चन, जिसमें स्टैम्प एक्ट एक्सप्लेन करेंगे, बॉस्टन टी पार्टी पूछा जा सकता है, एंड डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस बाय थॉमस जेफरसन. दिस इज द सिक्स्थ क्वेश्चन. सेवेंथ वन, डीकोलोनाइजेशन प्रोसेस ऑफ फॉल ऑफ डिफरेंट कंट्रीज, जैसे फॉर एग्जाम्पल मॉलडीव्स, म्यांमार और श्रीलंका. इसका डीकोलोनाइजेशन प्रोसेस कैसे हुआ, तो वो कंट्री वाइज पूछा जा सकता है. Now, except that, there is one more question. There are certain more questions which can be asked. Like for example, Gandhiji's role in Indian national movement. तो उसमें चंपारण सत्याग्रह पूछेंगे, रॉबलाट एक्ट पूछेंगे, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट पूछेंगे, क्विट इंडिया मूवमेंट पूछेंगे. ये एक ही क्वेश्चन में, दिस द 8th क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है, गांधीजी's रोल इन इंडियन नेशनल मूवमेंट. इसके अलावा द कंट्रीब्यूशन ऑफ सोशल रिफॉर्मर इज वन सच क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है. डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, कमला देवी चट्टोपाध्याय एंड राजा राम मोहन रॉय वाला कंट्रीब्यूशन. एक और है जो 10th क्वेश्चन है, जो मेरे हिसाब से इज इंपॉर्टेंट एंड ये एक्सपेक्टेड है ये एग्जाम में, दैट इज कंट्रीब्यूशन ऑफ रहीबाई पोपेरे, भाऊ कद्दारे एंड प्रेम सागर मिस्त्री. इसके अलावा लास्ट 2 क्वेश्चंस जो रेयरली पूछा गया है बट पूछा जा सकता है, एंड ये एग्जामिनर्स का लीस्ट फेवरेट है, तो शायद ये साल पूछ ले. कॉजेस ऑफ वर्ल्ड वॉर 2, उसमें डिससैटिस्फैक्शन विद ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स विल बी द फर्स्ट पार्ट. राइज ऑफ हिटलर, राइज ऑफ कम्युनिज्म, हिटलर्स अटैक ऑन पोलैंड, हिटलर्स वायलेशन ऑफ नॉन अग्रेशन पैक्ट. बच्चा ये क्वेश्चन में ही दिया रहेगा, हर एक पॉइंट एक एक मार्क के लिए रहेगा. सो 2-2 लाइन, 3-3 लाइन लिखेंगे हर एक पॉइंट में, मोर देन इनफ है. एंड द लास्ट क्वेश्चन दैट इज इंपॉर्टेंट जो पूछा जा सकता है, दैट इज नाटो एंड द सिएटो वॉर्सो. ये चारों को एक्सप्लेन करने के लिए एक आंसर पूछा जा सकता है. अगेन दिस विल बी फॉर 5 मार्क्स. सो लेट्स हैव अ क्विक रिकैप. मैंने कौन से क्वेश्चंस बोले? सबसे पहले कॉजेस ऑफ वर्ल्ड वॉर हम लोगों ने स्टार्ट किया वर्ल्ड वॉर 2. उससे फर्स्ट वन इज कॉजेस ऑफ वर्ल्ड वॉर. लेट्स हैव अ क्विक रिकैप, वैसे ही जैसे वही लाइन में स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले डिफरेंट पॉलिसीज, जिसमें हम लोग बोलते हैं प्राइमरी एजुकेशन, मिड डे मील एंड सर्व शिक्षण अभियान, फर्स्ट क्वेश्चन.
सेकेंड क्वेश्चन रीऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस ऑफ द स्टेट, जिसमें उत्तराखंड, झारखंड, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख का एक्सप्लेनेशन रहेगा। थर्ड वन आरटीआई, तो उसमें बिगिनिंग ऑफ मूवमेंट, डेफिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड सिटीजन अंडर दिस एक्ट, राइट्स ऑफ सिटीजन अंडर दिस एक्ट। फोर्थ वन विल बी राइज ऑफ कोलोनियलिज्म, इसमें इंडस्ट्रियल कॉन्सिक्वेंसेज, रिक्वायरमेंट्स ऑफ रॉ मटेरियल्स, फीलिंग ऑफ रेशियल सुपीरियोरिटी रहेगा। फिफ्थ वन will be geographical discoveries made by navigators, that is Marco Polo, Ferdinand Magellan, Christopher Columbus. Sixth one, events of American War of Independence, उसमें Stamp Act, Boston Tea Party, Declaration of Independence by Thomas Jefferson. Seventh one, decolonization process of the following countries like Maldives, Myanmar, Sri Lanka, etc. उसके बाद द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट कैन बी आस्क्ड, जैसे मैंने बोला इंडियन नेशनल मूवमेंट का, रॉवलेट एक्ट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एंड क्विट इंडिया मूवमेंट अलोंग विद चंपारण सत्याग्रह। सोशल रिफॉर्मर वाला क्वेश्चन, राजा राम मोहन रॉय, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, कमला देवी चट्टोपाध्याय, दिस विल बी द नाइन्थ क्वेश्चन। एंड कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ रहीबाई पोपेरे, भाऊ कदारे एंड प्रेम सागर मिस्त्री। कॉजेज ऑफ वर्ल्ड वॉर टू, जिसमें वो 5 क्वेश्चन हिटलर वाला, ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स वाला एंड अटैक वाला, हिटलर्स अटैक ऑन पोलैंड वाला, वो पूछा जा सकता है। एंड लास्ट वन दैट इज नाटो, एंजर्स, सिएटो एंड वॉर्सो वाला। दीज आर द इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो पूछा जा सकता है। अगेन बच्चा, इसके ऊपर खाली रिलाई मत रहना, देर आर अदर क्वेश्चंस जो पूछा जा सकता है, बट दिस इज अकॉर्डिंग टू मी, मेरा प्रेडिक्शन है, आ सकता है एग्जाम में। एंड जस्ट प्रिपेयर वेल, डू वेल, पेपर बहुत ईजी आने वाला है। Just make sure that you are writing all the questions properly. Alright? Till then, stay home, stay safe, संभाल के रहो, and all the best for your exam. Take care. Bye-bye.